poem My Heaven by Rabindranath Tagore, a Bengali poet. Here, the poet prays to God to make his country free and progressive. His poem is a prayer, and he wishes that the countrymen should be blessed with freedom and self-respect. He says that after freedom, the Indian people should be respected and they should be truthful, sincere, knowledge should be free. They should get the knowledge freely. Before 1947, R.N. Tagore prays to God to bless his country because he died in 1941, but India became free in 1947. So before independence, he prays to God to make his country progress. In the first stanza, the poet tells us about some of the qualities that he wishes his countrymen to have. In the first stanza, the poet puts before us an ideal picture of free India. First line, here the mind is without fear. It means the people of India should be fearless. They should be brave and bold. The head is held high. Held high in Hindi, Aatma Samman wale. In English, self-respect. The people, it means the countrymen, should be self-respecting and they should live with dignity. In the next line, here knowledge is free. Knowledge, it means everyone should be free to achieve knowledge. There should be no distinction, there should be no difference in the human society. In the next line, the world has not been broken. World, it means human society. Manav Samaj has not been broken up into fragments. Fragments, छोटे छोटे टुकड़े, small pieces, by narrow domestic walls. Narrow domestic walls in Hindi, संकीर्ण देशभक्ति. In English, internal division. Understand? Here, narrow domestic walls, संकीर्ण देशभक्ति, narrow-minded patriotism. Patriotism, it means this poet is a patriotic poet. So, narrow domestic walls, narrow-minded patriotism. Poet prays to God that after freedom, his countrymen should not be divided due to caste, religion and language, but they should be self-respecting. In the next line, here birds come out from the depth of truth. Here it means birds, sap, depth, deep. In Hindi, शब्द ऐसे हमारे भारत देश को
वरदान दो हे परमपिता। He prays to God. This is the prayer. So he prays to God to bless his country with freedom. Now in this line he says that the people of India, you can say the people of free India should be truthful. Understand? In the next line, where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where tireless means without tiring. Striving, struggle, संघर्ष. Tireless, it means लगातार. Stretches, फैलाना, spread. Arms towards perfection. Perfection means पूर्णता, completion. Understand? In this line, in the whole stanza, in the first line, here the mind is without fear. जो कवि है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है R.N. टैगोर, बंगाली पोएट है, वो देशभक्त कवि है। ये कविता ईश्वर की प्रार्थना है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे संसार को स्वर्ग जैसा आशीर्वाद प्रदान करे। He prays to God to bless the atmosphere of heaven. Understand? स्वर्ग जैसा वातावरण प्रदान करे। पहली लाइन में कवि कहता है कि हियर द माइंड इज विदाउट फियर। ऐसा भारत देश को वरदान दे जहां के लोगों के मन मस्तिष्क स्वतंत्र हों, निडर हों और हेड इज हेल्ड हाई। समझ गए होंगे? सिर आत्मसम्मान वाले हो ये नहीं, बल्कि हमारे देशवासी आत्मसम्मान वाले हो। दे शुड बी सेल्फ, मैंने बताया था, उसको हिंदी में समझ लीजिए। Their knowledge is free, इसका मतलब ज्ञान फ्री हो, विदाउट फीस, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब है हर व्यक्ति को, everyone should have the right to achieve the knowledge। हर आदमी को ज्ञान पाने का अधिकार होना चाहिए। आप सोच रहे हो कि बिना फीस ये हुए ज्ञान मिले, ऐसा कुछ नहीं। विदाउट फी नहीं, ये कह रहा है कि हमारे देश में जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, वो फ्रीली और सबको स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान पाने का अधिकार हो। इसलिए ज्ञान क्या हो? फ्री हो। ये है इसका मतलब। हियर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन। कहता है वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड है, संसार है। संसार का मतलब यह मानव समाज से है कि जो मानव समाज है वो नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट। मानव समाज छोटे छोटे टुकड़ों में न बटा हो। छोटे छोटे टुकड़ों का मतलब यहाँ पर जाति से है, यहाँ पर धर्म से है, यहाँ पर भाषा से है। जाति, धर्म और भाषा, ये हमारे यहाँ जो संकीर्णता है, संकीर्ण देशभक्ति है, जो नैरो माइंडेडनेस पैट्रियोटिज्म है, इससे बटा ना हो हमारा समाज। ये कवि पहले ही कल्पना कर चुका है। क्यों? आपको पता है 1947 में भारत देश स्वतंत्र हुआ और 1941 में R.N. टैगोर की डेथ हुई थी। इसलिए बिफोर फ्रीडम, ये इमेजिनेशन है उसकी, ये कल्पना है, ये पहले से ही सोच के हमारे भारत का जो आइडियल पिक्चर कैसा हो, आइडियल पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया कैसा हो, आदर्श चित्र कैसा हो, ये ऐसा भगवान हमारे देश को आशीर्वाद प्रदान करें, वरदान दें, ये बात आ रही है। इसके बाद कहता है कभी हियर बर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। इसमें आप लोगों को क्या कहना है कि जहां पर ऐसे लोग रह रहे हैं सत्यवादी हो। अंडरस्टैंड? इसका मतलब है कि सत्य बोलने वाले लोग हों, हमारे भारतीय लोग, हमारे आगा जो कमिंग जनरेशन है और फ्री इंडिया की, ये कैसी हो? ये सत्यवादी हो, सत्य बोलने वाले हों। और क्या है? फियर टाइप। इतना बात समझ में आया? फर्स्ट स्टेंजा डिफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय हेवन बाय R.N. टैगोर। Context: in this present stanza, the poet tells us about some of the qualities that he wishes his countrymen to have. He puts before us an ideal picture of free India. Understand? He also tells us about some qualities which will make his country progressive, which will make his country a happy. In context, explanation: in this present stanza, the poet, you can say that this poem is an extract from the famous work of R.N. टैगोर named Gitanjali. Understand?
ये गीतांजलि का एक अंश है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं। एक फेमस रचना है इसकी, R.N. टैगोर की। ये भी लाइन आप रिपीट करेंगे। दिस पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस बुक गीतांजलि। नाउ हियर एक्सप्लेनेशन। इन दिस प्रेजेंट स्टैंजा द पोएट सेज दैट द पीपल ऑफ फ्री इंडिया शुड बी fearless and they should be self-respecting. They should live with dignity and knowledge should be free. Every countryman should be free to achieve the knowledge, and the human society should not be divided into small pieces by the internal division. Understand? By the due to the caste, creed, and language. And the people should be truthful. They should speak the truth and they should be sincere. Understand? In the next stanza you will find the next thing. Here tireless ... away. Now where tireless striving stretches its arms towards perfection. पहला स्टेंजा क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेंजा आप लोग देखेंगे। Here tireless माने लगातार, स्ट्राइविंग माने संघर्ष करना, स्ट्रेचेज माने फैलाना, इट्स आर्म्स माने मीनिंग इन हिंदी भुजाएं, टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्शन मीन्स कंप्लीशन, पूर्णता। इन इंग्लिश द पीपल शुड मेक एफर्ट्स टू अचीव कंप्लीशन। इन हिंदी कवि कहता है कि जो हमारे भारत देश के लोग हैं, जो स्वतंत्र भारत के लोग हैं, जो स्वतंत्र भारत के जो हमारे भारतवासी हैं, वो उन्हें लगातार पूर्णता को पाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। अंडरस्टैंड? दे शुड ट्राई टू अचीव परफेक्शन, दे शुड मेक एफर्ट्स टू गेट परफेक्शन, कंप्लीशन। ये लाइन को इनटू इंग्लिश ट्रांसलेशन। वेयर द क्लियर स्टीम ऑफ रीजन। कभी क्या कह रहा है कि हे परमपिता, ओ गॉड, कहता है कि हमारा जो भारत है, हमारे जो भारत देश के निवासी हैं, वे कैसे हो? वे पूर्णता को पाने का प्रयास करने वाले हो। इट मींस दे शुड बी एक्टिव, सक्रिय होने चाहिए। दे शुड नॉट बी लेजी, आलसी नहीं होने चाहिए हमारे भारत देश के निवासी। अंडरस्टैंड? उसके बाद कहता है और हमारे भारत देश के लोगों के जो मस्तिष्क हैं, यहाँ पर मस्तिष्क का मतलब विवेक से है, विवेक का मतलब रीजन से है। रीजन माने कारण भी होता है यहाँ, लेकिन यहाँ पर माइंड से है। कहता है जो रीजन है दैट इज कंपेयर टू द क्लियर स्ट्रीम। क्लियर स्ट्रीम यू नो, पानी की जलधारा। हमारा जो भारत देश के निवासी हैं, उनका जो मन मस्तिष्क है वो स्वच्छ मस्तिष्क, वो जो क्लियर स्ट्रीम है, और ओल्ड कस्टम का मतलब पुरानी रीति रिवाज है। और हमारे भारत देश के जो निवासी हैं, उनकी जो क्लियर स्ट्रीम जैसे अपना अस्तित्व कहाँ होती है, स्वच्छ जलधारा अपना अस्तित्व कहाँ होती है, बालू के रेगिस्तान में। वैसे ही जो अच्छे विचार हैं, अच्छे मन मस्तिष्क हैं, सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, वे कहीं पुरानी रीति रिवाजों से मार्गदर्शित न हो, वे कहीं पथभ्रष्ट न हो। वे इसलिए कवि कहता है कि वो स्वच्छ, इन हिंदी में क्लियर पॉइंट समझा आपने, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अंडरस्टैंड? कि जो कवि है वो यहाँ तुलना करके बता रहा है। पहली बात भी मैंने बताया, जो मन मस्तिष्क है वो क्या है, जो प्रथाएं हैं, पुरानी प्रथाओं की तुलना कर रहा है किससे, बालू के जो रेगिस्तान होता है। और स्वच्छ धारा है वो है मन मस्तिष्क, कल्चर्ड माइंड कह सकते हैं आप लोग। अंडरस्टैंड? नहीं है तो अकेला माइंड कह सकते हैं। तो जो माइंड इज कंपेयर टू द क्लियर स्ट्रीम, माइंड किससे क्या कहते हैं, मिसगाइड होगा। माइंड होगा किससे, वो होगा जो मस्तिष्क है हमारा, वो पुरानी रीति रिवाजों से। और जो क्लियर स्ट्रीम है, स्वच्छ धारा है, वो कहाँ खत्म हो जाती है, वहां अपना धारा कहाँ लॉस्ट हो जाती है, वो जाती है सूखी रेत में। Here the poet compares the clear stream to the desert, clear stream to the mind, mind is compared to the clear stream to the mind. In the next line, the old customs are compared to the desert and desert is compared to the old custom. So the poet says that the people of India, it means the minds of the
countrymen should be guided, minds should be guided by you, and they should be progressive. He says that their minds should not be guided by the old customs, but the people of free India should be progressive. They should be active, and their thoughts and action should be guided by the new thoughts, new actions. Understand? They should be progressive. So he said that the minds of the free India should not be guided by the old customs, but they should be active. They should be new thinker. In this way, the poet clears these lines. They are the clear stream of vision. इसी को इतना एक्सप्लेन करना है आपको. Has not lost its way. कहीं जो स्वच्छ, जो हमारा मन मस्तिष्क है, स्वच्छ जलधारा रूपी मन मस्तिष्क जो है, वो पुरानी रीति रिवाज रूपी डेजर्ट में अपना अस्तित्व ना खो बैठे. इट मीन्स द माइंड्स शुड बी गाइडेड बाय द न्यू थॉट्स बाय यू, एंड दे शुड नॉट बी गाइडेड बाय द ओल्ड कस्टम्स. इन द नेक्स्ट लाइन, इनटू द डेयरी का मतलब मैंने आपको डल, नीरस, और डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान. सेंड ऑफ डेड हैबिट. डेड हैबिट का मतलब बुरी आदतें नहीं है, यहाँ पर पुरानी रीत रिवाज हैं, ओल्ड कस्टम है, विच आर यूजलेस नाउ. ऐसी ओल्ड कस्टम्स जो आजकल कैसी हो गई हैं, यूजलेस हो गई हैं. ओल्ड कस्टम्स विच हैव नो वैल्यू. ऐसी ओल्ड कस्टम्स जो जिनका आजकल कोई मूल्य नहीं है. इन द लाइन्स, नेक्स्ट लाइन, हियर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी. हे परमपिता, द माइंड इज लेड का मतलब यहाँ पर अग्रसर होना है, प्रोग्रेसिव से है. फॉरवर्ड बाय दी का मतलब आप लोग देख रहे होंगे, दाऊ गाय दी, तू तेरी नहीं, यहाँ पर गॉड. ये दी कौन है? गॉड है. हे परमपिता, हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के लोगों के जो मन मस्तिष्क हैं, वे तेरे द्वारा गाइडेड हो, तेरे द्वारा मार्गदर्शित हो. देयर एक्शन हो, देयर माइंड्स हो. और कहता है इनटू एवर वाइडनिंग. एवर वाइडनिंग का मतलब होता है देयर माइंड्स शुड ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव, and they should be, their mind should be developing, and thoughts and action into that heaven of freedom. Into that heaven of freedom कभी कहता है कि the people of free India, the minds of the countrymen of free India should be guided by you, and their action and thoughts should be progressive, and they should be guided by God. Next, he prays to God to bless the atmosphere of heaven, so that the people of India may feel that they are living in heaven. इसलिए हे परमपिता, ऐसा वरदान दे दे जिससे कि हमारे देश के जो निवासी हैं वो ऐसा महसूस करें कि वे स्वर्ग में रह रहे हैं. फ्रीडम, माई फादर का मतलब गॉड से है, परमपिता से है. अंडरस्टैंड? इसके बाद कहता है लेट माई कंट्री अवेक. लेट माई कंट्री अवेक माने हमारे देशवासी जाग ना जाए, ये मतलब नहीं. यहाँ पर कंट्री का मतलब कंट्रीमैन से है, और अवेक का मतलब ब्लेस से है. इसलिए ही प्रेज टू गॉड टू ब्लेस हिज कंट्री विद फ्रीडम. अंडरस्टैंड? थैंक यू.